اور اصلیت کو کر. اس لیے بہت پیر جو ہیں وہ بہت طریقوں سے باتیں کرتے ہیں، آدمی کو بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ پاتے، پھر بھی نہیں سمجھ پاتے. ہمارے پیر جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ دنیا جو ہے سب کچھ جان لے اور آ جائے لائن پہ، مگر لوگ ہی نہیں آ پاتے ہیں، اور وہ کتنا اس کو سمجھائیں گے، کس طرح سے سمجھائیں گے، نہیں سمجھ پاتے. جن کے دلوں میں نرمی ہوگی وہی لوگ آگے بڑھ پائیں گے. کیوں میاں؟ جن کے دلوں میں سمجھداری اور نرمی ہوگی، اور سمجھداری سے چل کے، نرمی سے چل کے بات کریں گے اور کر کے وہ کریں گے، وہی آگے بڑھ پائیں گے. وہی میں نے کہا نا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا پیسے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے آپ کہو گے کہ بھیا یہ کرو، تو کہیں گے کیوں، کیسے کریں، کیا کریں، اس لیے کریں. ان کے اندر ایک اپنے نفس کی ایک گرمی ہوگی، وہ نہیں کریں گے. لیکن ہمارے میاں کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ غریب آدمی کو ہم اپنے سامنے بٹھا کے کہتے ہیں کہ بیٹا بول لا الہ الا اللہ، وہ فوراً بولے گا لا الہ الا اللہ، ذکر کرے. تو ذکر تک پہنچنا ہی ہے، چاہے کتنے ہی پیسے والے ہو، چاہے کتنے ہی پڑھے لکھے ہو. سمجھداری اسی بات میں ہے کہ تم سمجھ جاؤ بات کو، سمجھ رہے نا. اب فوراً عبادت پر آ جاؤ، جب آپ عبادت پہ آؤ گے تو ہی آپ آگے بڑھو گے. اور عبادت میں بھی آپ نے نمازیں پڑھ لی، کلمے پڑھ لیے، آیتیں پڑھ لی قرآن کی، اور السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم، چل دی، ہو گئی نماز آپ کی. نہیں، ایک حد تک آپ نے کیا بس عمل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنا ہی ہے. اور یہ نصیب کی بات ہے، کس کو اللہ تعالیٰ کس وقت کیسا کون سا عمل وہ دے دے کہ اس کا دل نرم ہو جائے. اپنے آپ کو نیک، پاک باز، ایماندار بنائے گا تو اللہ اس کو گائیڈ بھی کرے گا، اللہ اس کو رہنمائی بھی کرے گا. سمجھے نہیں سمجھے؟ کیوں میاں؟ ٹھیک ہے نا. شروع زمانے میں گیا تھا، پہلا عروج زیادہ کرتا تھا میں، 12 سال مجھے سوچ کی تھے، 13ویں سال میں گیا تھا، 13واں. تو ادھر گیا تو میرے کو معلوم ہو کہ درگاہ سب میاں بنائے، یہ سب میاں ہمارا یہ تو میں بڑا پڑے کو اور چلتے چلتے آتا میاں ادھر بیٹھے ہوتے ہیں کمرے کے بعد کمرے سے کھڑکی کے نیچے بیٹھے ہوتے تو میری طرف دیکھ لیا تو میں میاں کو دیکھا پتا ایسا سینا کھلا گیا تو میں حضرت کو دیکھ کے پوچھ لیا ایسا ہو گیا. چلو سن. اچھا، آج تک بھی میرے کو یہ نہیں معلوم کہ اس سجدے کا راز کیا ہے. جب میاں سجدے کے لیے بات کرتے نا تو یہ مقبول بھائی گھاسویل والے میرے کو دھکا دے کے ہٹا کے مار کے دھار کو وہ دلی لوٹا لے کے میاں کو جاتا میں بھاگ کے جاتا ہوں، لیکن وہ نکل کر میرے کو دھکا مارتے. وہ آج تک میرے کو نہیں معلوم وہ راز کیا ہے. کوئی ایسی بات میں تو بولو اس تک میں لوٹا میرا کوئی بھی نہیں تھا، وہ تو رات کا ٹائم تھا، وہ لوٹا میرا چلے گئے. اب لوٹ گئے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ایک جگہ لوٹا اور ایک ہاتھ پکڑے گئے. میاں زبان سے کچھ نہ بول رہے کہ بھائی دیکھو تم جو پکڑ کے چل رہے ہو تم کو گیس ہو گئی. وہ آواز آ رہی ہے نا، میاں نہیں، میاں خاموش کر رہا ہے، میرے کو آواز آ رہی ہے گیس ہو گئی ہے.
उस ज़माने में दरवाजे के ऊपर एक पहली मर्तबा देखा कि वो जायरीन के चप्पलें रखकर और उससे कुछ जो पैसे दे के वो अपने चप्पलें रख के अंदर रियायत ले चले गया था। वहाँ पे लेकर आया, वहाँ पे भी जबान का कुछ नहीं बोल रहे, जो पकड़ के चल रहा है तो किस बेस तेरे क्या है, किस बेस पर, ये बोलते ना किस बेस पर तुम अकड़ रहे हो। अकड़ कर चलना तो इसका पड़ रहे। मियाँ कुछ नहीं, खाली हाथ पकड़े लौटा है मेरे पास, जबान से कुछ अदायगी नहीं। अकड़ कर चलने का हक उसको है जो मेरे मियाँ के ज़ायरीन के, जो आशिकों के चप्पलों की हिफाजत कर रहा है, उसको अकड़ के चलना है। तुम किस बिररे पे अकड़ के चल रहे हो? इस बिररे पे कि हमारे पीर ने ये किया वो किया, हमने कुछ भी नहीं। ये सब बातें तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि तुम जो अकड़ है वो अकड़ना किस बेस पे, इस अकड़ के इसको चलना चाहिए कि मेरे मियाँ की ज़ाहिरीन के, मेरे मियाँ के आशिकों के चप्पलों की रखवाली कर रहा, अकड़ के ये जाना चाहिए वहाँ पर कि मैं आपके आशिकों के नालन की या चप्पलों की हिफाजत कर रहा है, तुमको हक है। हमारी एक मरतबा बैठ जी हाँ, एक मरतबा बैठ गए वहीं पर, मियाँ की जगह वही खिड़की के नीचे बैठते हैं, चाहे शब्बेदारी हो चाहे दिन में हो या सोना हो, तो फिर वो अपने कमरे में चले जाते थे, भविष्य में जिस पर नंबर नहीं है वहाँ जाके लेके आते थे। तो रात के 2 बजे महफिल समा है, तो महफिल समा में जाने के लिए हम लोग बड़ा तड़पते थे। तो मियाँ ने सबको बिठा ले बैठो तुम, मियाँ भी बैठे और दिल ऐसा तड़प रहा कि यार महफिल में जाने दे, महफिल जाने दे। तो वो ज़बान से बोल नहीं रहे, या मख्फी तौर से या ख्वाब में या बिशारत में बताते कि भाई देखो मैं तुम्हारा पीर हूँ और वो मेरा पीर है, अगर यहाँ पर कोई गलती करे तो मैं सुधारूंगा, छोड़ दूंगा, बख्श दूंगा, माफ़ कर दूंगा। अगर वहाँ तुम कुछ कर दिए तो मेरे बस में, इसलिए बैठे रहो यहीं। तो वो बैठे, हम भी बैठे, सब बैठे। मियाँ के सामने उस कमरे में एक नौजवान लड़की लेटी हुई है। मियाँ अंदर बैठे, मैं मियाँ के पीछे कोने में मैं बैठा। वो लड़की सोते सोते ऐसा पलटती है कि मियाँ की तरफ वो उसके पाँव आ जाते हैं। तो मैं 1-2 मरतबा देखा, तो कभी कभी वो खुद पलट जाती थी, कभी ऐसा थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट उसका देखा। बहुत ज़्यादा करे तो मैं क्या मालूम जाके उसको पाँव को लेकर हटा देता, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा। 1 मरतबा मियाँ ने देखा, चुप हो गए, कुछ बोले लगा। दूसरी मरतबा फिर हुआ तो मैं, तीसरी मरतबा उन्होंने मेरी की तरफ देखा, ऐसा बोला। अब मैं दिल में बोलने लगा, यार मेरे को मना कर दिया, और उनके देखने का अंदाज जो है ना, नाराज़ होंगे ना वो, तो उनकी आंखों से ही पता चल जाता है। और ये गाल में ये है ना, इससे पता चल जाता है कि पूछे ये नाराज़ है। तो खैर मैं समझ गया यार, दिन में मैं बेटा सोचने लगा यार मैं तो अदब की खातिर उसको, हालांकि गैर औरत को ना महरम को हाथ लगा मना, मेरा पीर शाहिद है। अब मेरे पीर की उसमें ये हो रही, बेअदबी तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन हो रही, तो मैं जाके हटा रहा हूँ। मैं हालांकि मना है लेकिन मेरा पीर शाहिद है, मेरी नीयत क्या है, मेरी जो हरकत कर रहा हूँ उसका मकसद क्या है, मेरे पीर को जाहिर है। लेकिन फिर भी वो मियाँ ने कहा था, अब फिर उसका रिटर्न जवाब आता, उसका जवाब यह था कि तू क्या समझता है,
तू क्या समझता है, तू ही मकबूल बारगाह है? हो सकता है कि तेरे से ज़्यादा मकबूल बारगाह हुई है। अगर तू इसके साथ में बेदबी कर देगा तो तू रांदे दरगाह हो जाएगा। तुम मत समझो कि मैं मकबूल बारगाह हूँ। मकबूल बारगाह ये भी हो सकती है तुझसे ज़्यादा। अगर वो नाराज़ हो जाएंगे तो क्या वो बोलते हैं ना, रांदगा है, हाँ? रांदा है, क्या क्या बोलते हैं जी। तो हमेशा जो है ना अपनी ज़ात को अहमियत नहीं देना, अहमियत देना चाहिए अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और अपने पीर उस्ताद। पीर से बड़ा लफ्ज़ उस्ताद है, उसके बाद में पीर। तो उस्ताद की जो है ये अल्लाह रसूल, उस्ताद, माँ बाप और मुखलिस दोस्त, चाहने वाले दोस्त, इसको अहमियत देना चाहिए। और इन्हीं में अपना उरूज जो है वो अपने तस्वुरात, ख़यालात परवान चढ़ते। नीचे लोग, नाहिल लोग और जो मोहल्ले में बदनाम है या अच्छे नहीं है उनसे दोस्ती करने का उसका मकसद ये है कि तुम भी उसमें ही निकले, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों में बैठना। अगर आपको पहचानना है तो आपको पहचानने की ज़रूरत है, आपके दोस्त को देख लो। आपके दोस्त को देख लेंगे तो मालूम हो जाएगा ये क्या है। आपकी जिनकी जान पहचान है, आप जिनके साथ रहते हो उनको देख लो तो आप मालूम पड़ जाएंगे कैसे आप। हाँ मियाँ, का कुछ बता रहे थे ना आप? जी। वो लिस्ट मिली नहीं, मैं कल घर में लिखता हूँ, या वो चाबी है कबाट की वो लेके आऊँगा तो वो ले जाएगा, फिर मैं लिस्ट देता हूँ। उसमें पूरे तरतीब से सब उन्वानात लिखे हुए हैं एकदम शुरू से, कि हुजूर शुरू में कहाँ थे, बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कैसे, वो तमाम की तमाम चीज़ें उसमें लिखी हुई। फिर अपन उसी हिसाब से अपन गुफ्तगू करते जाएंगे और तमाम बातों को बयान करेंगे, तो फिर उसको तुम किताब बंद करते जाना इंशाल्लाह। उसको पीडीएफ की शक्ल भी दे सकते हैं। हाँ? पीडीएफ की शक्ल भी दे सकते हैं, काहे की? सेव करने के लिए हाँ। पीडीएफ की शक्ल भी दे सकते हैं, स्कैन करके। तो कुछ भी कर सकते हैं। और अपने को किताब बनानी है, पीडीएफ की शक्ल में भी बनाना है, तो वो भी हो सकता है। मगर एक किताब लिखी जाएगी फटाफट फटाफट, उस हिसाब से वो किताब बना दी जाएगी। कई लोग हैं उनकी बातें हैं, जैसे कि नित्र शाह बाबा की लिखी हुई भाई कई बातें हैं मियाँ के बारे में, वो गुलाम हजूर भाई के पास है। तो गुलाम हजूर भाई से भी कुछ ले लेंगे अपन, और लोगों से भी ले लेंगे, और किताब को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ये काम हो जाएगा तो अपना बड़ा काम हो जाएगा। वो काम बिल्कुल रुका हुआ है। अभी कोई भी चीज़ है, अभी सरकार की हदीस है, हदीसें लाखों हैं सरकार की हदीस में, लेकिन वो एक हदीस किसी से नहीं आई, इतने लोगों से आए, उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, तो सब एक जगह होकर वो लाख 1.5 लाख हदीसें। एक ही आदमी को पूछे जाएंगे तो तमाम बातें नहीं आएंगी। उसके लिए ग्राउंड होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए, तो बातें खुल के आती है। तुम्हारी नीयत अच्छी है, अल्लाह तुम्हारी मदद, मियाँ तुम्हारी मदद करे, करो, लेकिन नेक नीयत से करो, इसमें नाम और नमूद की ख्वाहिश जाहिर ना हो। आइए पीछे में।
अच्छी बात है मियाँ। हाँ कुछ खाना खा लीजिए नहीं। हाँ